Lecture number 5, chapter number 7, Mathematical Induction and Binomial Theorem, exercise 7.1, question number 11, combination from 2 to 2 plus combinations from 3 to 2 plus combinations from 4 to 2 plus so on plus combinations from n to 2 is equal to combinations from n plus 1 to 3 for n is greater or equal to 2. अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है n is greater or equal to 2. So step number 1, put n is 2. अब यहाँ पे हम n is equal to 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है n is always greater or equal to 2. So put n is equal to 2 तो हमारे पास आ जाएगा combinations from 2 to 2 is equal to combinations from 2 plus 1 to 3. तो क्या आ जाएगा? This implies that combinations from 2 to 2 is equal to combinations from 3 to 3. और ये हमने इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि combinations from same number n to n is equal to 1. तो ये आ जाएगा 1 is equal to 1. True since it is true for n is equal to 2. So step number 1 is satisfied. स्टेप नंबर 1 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ. अभी हमारे पास है स्टेप नंबर 2. स्टेप 2, सपोज it is true for n is equal to k. So we get combinations from 2 to 2 plus combinations from 3 to 2 plus combinations from 4 to 2 plus so on combinations from k to 2 is equal to combinations from k plus 1 to 3. Say this is equation step. Step number 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेप नंबर 3, we prove that it is true for n is equal to k plus 1. So adding something हमने स्टार की जो लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट है इससे निकालना है. जो कि हमारे पास है k combination from k to 2. k की जगह k plus 1 पुट करें so k plus 1 2. हमने ये वाला टर्म ऐड करना है. so adding combination from k plus 1 to 2 on both sides step. तो क्या जाएगा? combinations from 2 to 2 plus combinations from 3 to 2 plus combinations from 4 to 2 plus so on combinations from k to 2 plus combinations from k plus 1 to 2 is equal to combinations from k plus 1 to 3 plus
combination from k plus 1 to 2। अब हमने ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास है कॉम्बिनेशन k plus 1 to 3 plus combination k plus 1 to 2। अच्छा देखिए यहाँ पे चित्र नंबर 6 का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर चित्र नंबर 6 का एक फॉर्मूला है जो कि हमारे पास है कॉम्बिनेशन n to r plus combination n to r minus 1 is equal to combination n plus 1 to r। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे n और n सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर भी k plus 1 और k plus 1 सेम है। तो इसके साथ हमने इसी n के साथ इसने 1 नंबर को ऐड किया है, तो यहाँ पर भी 1 नंबर्स को ऐड करें तो यहाँ जाएगा k plus 1 plus 1। और यहाँ पे एक r है और एक है r minus 1। यहाँ पे जो नंबर ज्यादा है इसको लिया है, यहाँ पे 3 नंबर ज्यादा है तो इसको लिया है। सो कॉम्बिनेशन इट बिकम्स combinations k plus 1 plus 1 to 3। If we put k plus 1 is equal to n, अगर हम k plus 1 की जगह n पुट करें तो हमारे पास सेम इक्वेशन बन जाएगा। So if we put k plus 1 is equal to n, we get same result as given। Thus it is true for n is equal to k plus 1 and hence it is true for all value of n। Question number 12. Show by mathematical induction that 5 power 2n minus 1 divided by 24 is an integer। integer हमारे पास है 0, 1, 2, 3 and so on, minus 1, minus 2, minus 3 and so on। ये हमारे पास है इंटीजर। अब स्टेप नंबर 1, put n is equal to 1, तो क्या जाएगा 5 power 2 1 minus 1 divided by 24। तो ये आ जाएगा 5 2 1 का 2 minus 1 divided by 24। 5 2 का मतलब है कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, minus 1 divided by 24। तो ये आ जाएगा 5 into 5 is 25 minus 1 divided by 24। 25 से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 24 divided by 24। 24 को 24 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, और देखिए 1 यहाँ पे है, so means 1 is an integer। 1 integer है, so step number 1 is satisfied since it is true
for n is equal to 1, so step number 1 is satisfied. Step number 1 is satisfied. Step number 2. Step number 2. Suppose it is true for n is equal to k, so we get 5 power 2k minus 1 divided by 24 say this is step, means this is also integer, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूशन. स्टेप नंबर 3 we prove that it is true for n is equal to k plus 1. इससे पहले हमने जितनी भी क्वेश्चंस किए तो स्टेप नंबर 3 में हम कोई भी टर्म यहाँ पे प्लस करते थे. अब यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है. सो वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, that is we prove that 5 power 2 k plus 1 minus 1 divided by 24 is also integer. हमने ये प्रूव करना है कि 5 power 2 k plus 1 minus 1 divided by 24 is also integer. तो हम यही टर्म लेंगे और इसको हम साथ करेंगे. तो देखिए यहाँ पे for this take 5 power 2 k plus 1 minus 1 divided by 24. हमने ये टर्म लिया और हम इसको ही साथ करेंगे. तो देखिए यहाँ पे 5 power 2k को मल्टीप्लाई करें तो 2k plus 2 minus 1 divided by 24. ठीक है, फिर क्या करें, ये आ जाएगा 5 power 2k into 5 power 2 minus 1 divided by 24. 5 square means 25, तो ये आ जाएगा 5 2k और ये आ जाएगा 25 minus 1 divided by 24. 25 को अब हम स्प्लिट करेंगे 24 और 1 में, तो ये आ जाएगा 5 power 2k. 25 को हमने लिखा 24 plus 1 minus 1 divided by 24. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24 5 power 2k minus 5 2k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 power 2k minus 1 divided by, ये प्लस आ जाएगा, divided by 24. फिर क्या आ जाएगा, अब इसी 24 पावर 2k को अलग इसके नीचे लिख के तो आ जाएगा 24 5 power 2k divided by 24 plus
2k minus 1 divided by 24। तो ये 24 और ये 24 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 24। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है स्टार जिसको हमने सपोज किया था 5 पावर 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 24। तो ये तो बन गया इंटीजर बाय स्टार, यहाँ पे मैंने इसी जगह लिखा इंटीजर बाय स्टार। अब देखते हैं क्या ये हमारे पास इंटीजर है कि नहीं, तो ये भी हमारे पास इंटीजर है, सो इसकी जगह भी हमने लिखा इंटीजर। क्यों इंटीजर है, क्योंकि पावर बाय 2k अगर हम k की जगह 0 पुट करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अगर k की जगह हम 1 लिख के तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर is 25। तो ये भी हमारे पास इंटीजर है, इसी वजह से हमने लिखा इंटीजर प्लस इंटीजर, और इंटीजर का सम भी हमारे पास आता है इंटीजर। सो इट मींस दैट 5 पावर 2 k plus 1 minus 1 divided by 24 is also integer, thus it is true for n is equal to k plus 1 and hence it is true for all value of n। पार्ट बी सेकंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 में 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइड बाई 81 इज ए इंटीजर। अभी हमने इंटीजर को लिखा, इंटीजर हमारे पास है z इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है इंटीजर। स्टेप नंबर 1 पुट n इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा 10 पावर n प्लस 1 मीन 1 प्लस 1 माइनस 9 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 81। तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 डिवाइड बाय 81। 10 square means 10 multiplied by 10 which is 100. So 100 minus 9 10 minus 19 divided by 81. 100 minus 19 is 81 divided by 81 which is 1. 1 belongs to the set of integer, so it is integer. Since it is true, for n is equal to 1, so step number 1 is satisfied. Step number 2. Suppose it is true for n is equal to k, so it becomes 10 power k plus 1 minus 9k minus 10 divided by 81 is
say this is step. Step number 3. Step number 3. We prove that it is true for n is equal to k plus 1. अब यहाँ पे अगेन ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है तो हमने एडिशन नहीं करना. So we prove that it is true for n is equal to k plus 1. That is we prove that 10 power k की जगह k plus 1 plus 1 minus 9 k plus 1 minus 10 divided by 81 as integer. हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम k की जगह या n की जगह k plus 1 पुट करें और इसको सॉल्व करें कि ये भी इंटीजर आ जाए तो हमने इसी को अब सॉल्व करना होगा कि इसका आंसर इंटीजर आता है कि नहीं. For this step वही हम लेंगे 10 पावर k plus 1 minus 9 into k plus 1 minus 10 divided by 81. तो क्या जाएगा, इसी से हमने स्टार निकालना है. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है स्टार 10 पावर k plus 1, यहाँ पर भी है 10 पावर k plus 1. तो इसको अलग लिखिए तो ये आ जाएगा 10 पावर k plus 1 और 10 पावर 1 माइनस 9k माइनस 9, इसी 9 को मल्टीप्लाई करें माइनस 10 डिवाइड बाय 81. अब क्या करें, स्टार को देखिए 10 पावर k plus 1, यहाँ पर भी आ गया 10 पावर k plus 1 माइनस 9k, लेकिन इसके साथ 10 है और 10 को स्प्लिट करें तो 10 पावर k plus 1, तो ये आ जाएगा 1 plus 9 minus 9k minus 9 minus 10 divided by 81. अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आ जाएगा 10 पावर k plus 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस 10 पावर k plus 1 को 9 के साथ, so 9 into 10 power k plus 1 minus 9k minus 9 minus 10 divided by 81. फिर क्या करें, इसको रीअरेंज करें ताकि हमारे पास स्टार आ जाए. तो देखिए यहाँ पे स्टार हमारे पास है 10 पावर k plus 1, so 10 पावर k plus 1 माइनस 9k, तो ये के साथ माइनस 10, फिर ये साथ लिखिए माइनस 10 प्लस 9 into 10 power k plus 1 minus 9 whole divided by 81. अब इसकी नीचे ये 81 अलग लिखिए 10 power k plus 1 minus 9k minus 10 divided by 81 plus 9 into 10 power k plus 1 minus 9 divided by 81. अब देखिए हमारे पास स्टार बन गया जो कि हमारे पास है इंटीजर. तो यहाँ पे मैंने लिखा इट इज इंटीजर
बाय स्टार। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर आता है क्या ये भी इंटीजर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अगर k की जगह मैं डायरेक्ट 1 पुट कर लूँ तो आ जाएगा 1 + 1 - 9 डिवाइड बाय 81। तो क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर -9 डिवाइड बाय 81। 10 स्क्वायर इज 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 900 - 9 डिवाइड बाय 81। ये इससे माइनस करें तो आ जाएगा 9891 डिवाइड बाय 81। ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9891 को 81 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 81। ये आ जाएगा 81 अगेन 1 3। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 11, और 11 हमारे पास इंटीजर में है, सो इट इज आल्सो एन integer. Integer plus integer is integer. Thus it is true for n is equal to k plus 1, and hence it is true for all value of and for all value of n। बस याद कीजिए।